Good afternoon, students. Welcome to Virtual Studio Sundargarh. I am Srikanta Sahu from Government High School, Kinjirma. So, dear student, today we are going to discuss a very important topic. It is about unseen passage. So, dear students, in your examination, you have to answer 5 questions from an unseen passage. So, it is a very important, and also to develop your reading skill, this portion is also very important. So let us go to the smartboard and start our discussion. So at first we should try to understand what is an unseen passage. So dear students, unseen passage, the another name of this unseen passage is reading comprehension. आपको reading comprehension मध्य कहा जाए एवं it is commonly used in language assessment, just like in Odia language also, in English language. Okay. Even it is typically consists of a piece of text, such as paragraph or longer passage. It may be a small paragraph or it may be 2 or 3 paragraphs. So, in your examination class 9th or 10th, it may be 1 or 2 paragraphs only, and when you go to higher schools, that is your plus 2 level or plus 3 level, the longer passages you have to solve. So, it is unseen. Why it is unseen? Because the examinee or the students have not encountered this type of text or this type of passage before. It is completely a new one. Nua pura puri bhavare. It is not from your textbook. Konosi bohi ru tomar asibo nahi. Bohi baharo gote paragraph diya habo. Even there are 5 questions related to the paragraph, or it is from the paragraph, and you have to answer the 5 questions. So now let us try to understand when in the examination we solve, or we will try to solve this type of questions from the unseen passage. What is the purpose of this? यार उद्देश्य कौन? प्रकृतरे जेतेबेले आमे अनसीन पैसेज टा करूछे यार द्वारा हमर लाभटा कोन हबो बा एग्जामिनर हमकु हमठारो कोन आशा करूछन्ती सेटा हमें जानिबा दरकार. तो एठी पर्पस टा टिके जानिबा. जेतेबेले when students or individual or examinee are given unseen passage, they are usually asked to answer questions or perform tasks related to the content. Okay. ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ଆଗରୁ passage ଦିଆ ହବ and you have to answer in your examination 5 questions are there. Okay. तो passage related question तुमको answer करिया ପାଇଁ पड़िबो. तो एठी एई जो क्वेश्चन गुडी को आसीबो, these questions may access various aspect of reading comprehension. Reading comprehension रो अनेक गुडे एस्पेक्ट रहिछि. रीडिंग कम्प्रिहेंशन तामाने हम जोटा अनसीन पैसेज कहूछु ताकू हायर लेवल रे रीडिंग कम्प्रिहेंशन होते कहा जाए. तो एठी एग्जामिनर हमठारो कोन आशा करूछंती रीडिंग कम्प्रिहेंशन द्वारा? अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया. तो एठी एग्जामिनर हमठारो जानिबा पई चाहुछंती एक्चुअली स्टूडेंट और एग्जामिनी बा परीक्षार्थी रो अंडरस्टैंडिंग लेवल केते अछि.
तो गोटे पैराग्राफ को किभली भाव में इंटरप्रिट करि पारुछि बा तार मेन आइडिया को से किभली भाव में प्रकाश करि पारुछि तार डिटेल्स जो दिया है पैराग्राफ रे आइडेंटिफाई करि पारुछि कि नहीं इन्फरेंसेस ताकू विभिन्न लॉजिक विभिन्न सपोर्टिंग डिटेल्स द्वारा ताकू कंक्लूड करि पारुछि कि नहीं तो एटा होछि विशेष उद्देश्य बा तार पर्पस तो नेक्स्ट आमे परवर्ती स्लाइड को जीवा एटा तो मैं आलोचना कर देछि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बा अनसीन पैसेज विषय में आलोचना कले दैट इज कॉम्प्रिहेंड रो अर्थ होछि पिला माने बुझिबाटा को जाए अंडरस्टैंडिंग लेवल को टेस्ट करा जाए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन माध्यम रे बा अनसीन पैसेज माध्यम रे टू एबल टू एक्यूरेटली कॉम्प्रिहेंड written material and make sense of what you have read जोटा हमें पढ़िले ताकू हमें किभली भाव में सेंस करूचे ताकू इंटरप्रेट केमती करूचे तो या को हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोली कहूचे तो एठी किछिटा हमरो एक्चुअली दिस इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमें टाइप्स ऑफ जो पैसेज के जस्ट हमें हल्का भाव आलोचना कर दबा को प्रकार पैसेज हमरो आसी पारे मैक्सिमम इन 9th और 10th नैरेटिव और लिटरेरी टाइप ऑफ पैसेज प्राय तो आसी थाए बट टाइप्स ऑफ पैसेज इट मे बी फैक्चुअल इंफॉर्मेटिव पैसेज आसी परिबा जोटा कि हमर न्यूज़पेपर न्यूज स्टोरीज इंस्ट्रक्शन मैनुअल रिसर्च रिपोर्ट यारी ऊपर देन लिटरेरी टॉपिक रे कोनोसी प्रकार टेक्स्ट रु बहिर कोनोसी पैराग्राफ आसी पारे पोएम रो कोनोसी अंश आसी पारे ओके देन नैरेटिव स्टाइल ऑफ पैसेज रो कोन होची पिला माने इट इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी कहानी आकारे बा नरेशन वर्णना आकारे रे सेटा थई पारे जो पैराग्राफ ता ओके पर्सनल एक्सपीरियंस आसी पारिबो एथरे किंबा सम इवेंट तारि ऊपर वर्णना आसी पारे ऑटोबायोग्राफी आसी पारे हिस्ट्री आसी पारे एटसेट्रा दिस इज आलोचना करिवा नाही एटा तमरो हायर लेवल के जेतेबेले जीवो टाइप्स ऑफ पैसेज विषय तमे डिटेल जानि परिबो देन डेस्क्रिप्टिव आसीबो एटा कोनोसी इवेंट पर्सन प्लेसेस यार ऊपर डिस्क्राइब करा हितिबो टूरिस्ट गाइड जेंदी जर्नल मैगजीन एडा को सब डेस्क्रिप्टिव वे रे सब लिखा देता आर्गुमेंटिव एटा मध्ये आउटे प्रकार जो थरे आर्गुमेंट्स ओपिनियन एवं बिलीफ को नहीं की जो ऑथर बा राइटर डिफरेंट आर्गुमेंटिव वे रे ताकू प्रकाश करथिबे दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंटिव एनालिटिकल कोन आछि टॉपिक रो विभिन्न एंगल रो एनालिसिस कराई दो टॉपिक गुडा से प्रकार पैसेज मध्ये आसी पारे देन एब्स्ट्रैक्ट जो थरे हमरो फिलोसॉफिकल टॉपिक आसीबो ओके सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ हमें जोटा को होची पैसेज ओके वर्तमान हमें देखिबा को प्रकार क्वेश्चन हमें तो टॉपिक देखि देले जोटा सब्जेक्ट मैटर जोटा आसी गला हमरो गोटे पैराग्राफ तारी को बेस करी की विभिन्न प्रकार क्वेश्चन तो प्रथमे देखो को प्रकार क्वेश्चन आसी परिबो ग्लोबल क्वेश्चन कोन व्हाट इज ग्लोबल क्वेश्चन टू डिटरमाइन द सेंट्रल आइडिया और थीम अर्थात पैराग्राफ बा पैसेज जो दिया हिची से पैसेज रो सेंट्रल आइडिया कोन अछि फॉर एग्जांपल गोटे क्वेश्चन पचरा गला व्हाट इज द पैराग्राफ अबाउट ओके सो दिस इज अ ग्लोबल क्वेश्चन देन फैक्चुअल क्वेश्चन हमरो जो पैराग्राफ गुडी को क्वेश्चन आसीबो मैक्सिमम केसेस रे फैक्चुअल और इन्फरेंशियल क्वेश्चन आसी पारे फैक्चुअल क्वेश्चन मुख्यतः थाए जोटी कि हमरो हु व्हाट इ प्रकार वेयर दैट मींस we have to go through the passage and we have to answer factual question whose answers are directly from the text ru hi हमको तक पढ़िबा पई पड़िबो इन्फरेंशियल एठी गेस करिबा आंसर को बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विशेष करी कि इन्फरेंशियल क्वेश्चन रे व्हाई हाउ इ प्रकार क्वेश्चन आसीबो देन इवैल्यूएटिव क्वेश्चन एंड प्रेडिक्टिव क्वेश्चन
तो मुख्यतः आमे ये रे भितरे फैक्चुअल और इन्फरेंशियल क्वेश्चन भितरे ही आलोचना करिवा। सो नेक्स्ट डायरेक्टली आमे जिबा व्हाट आर द टिप्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। आमे को प्रोसेस रे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करिवा बा अनसीन पैसेज को सॉल्व करिवा। तो प्रथम टिप्स हला पिला माने टिके मन दिके सुनिबो। रीड द पैसेज थोरोली। पैसेज को आमे प्रथमे थोरोली पढ़िबा एवं द रीडिंग शुड बी क्विक। एटा टिके क्विकली पढ़िबा कारण परीक्षा रे समय बहुत कम थाए। नेक्स्ट आमे स्कीमिंग करिबा as rapidly as possible to determine the main idea। तो आउ थरे ताको स्कीम करिबा जो थरे की टॉपिक रो बा अनसीन पैसेज रो मेन आइडिया को आमे टिके ग्राफ्स करिया पे चेष्टा करिबा बिफोर लुकिंग टू द क्वेश्चन एट द क्वेश्चन। प्रश्न को जिबा पूर्वरु आमे प्रथमे थोरोली पढ़िबा तापरे टिके स्कीमिंग करिबा। तो एठी आ गोटे जिंस लक्ष्य करिवो in the unseen passage you have to come across some unknown words जोटा को तुम डिफिकल्ट वर्ड्स बोली की कहूछ। तो सेठी प्रति आमे टिके एटा वरीड हवा नाही। मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड थिबो बा अननोन वर्ड थिबो सेटा को आमे टिको स्किप करी की देखिबा परवर्ती समय तक बुझिया पे चेष्टा करबा। देन focus on the relevant detail and underline them with a pen or pencil। अर्थात जोटा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गुडा को थिबो बा रिलेवेंट डिटेल्स कहले जोटा टिके इम्पोर्टेंट पॉइंट भली हमको लागिबो सेठी हमें अंडरलाइन कर देबा पेन किबा पेंसिल पे। तापरे हमरो नेक्स्ट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड गो बैक टू द पैसेज टू फाइंड द आंसर। तो वर्तमान हमर काम हला क्वेश्चन को पढ़िबा केयरफुली पढ़िबा एवं पुणी थरे पैसेज को जिबा एवं आंसर को फाइंड आउट करिया पे चेष्टा करबा। हैला आंसर गुडी को साधारण गोटे लॉजिकल सीक्वेंस रे थाए। इन जनरल केते बेले केमती एपट सपोर्ट देई दिए किंतु इन ए सीक्वेंस फॉर सम टाइम्स टिके एपट सपोर्ट हेथि पारे किंतु अधिकांश क्षेत्र रे सीक्वेंस रे रहिबो आंसर गुडी को। ट्राई टू राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। आमे एग्जैक्ट जोटा टेक्स्ट रे थिबो सेही वर्डिंग को आमे कॉपी न करी की चेष्टा करिबा निजस्व शब्द सेठी ऐड करी की लिखिया पे चेष्टा करिबा। नेक्स्ट होजी टू फाइंड आंसर टू द वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस लाइक देखो केते बेले केमती कोन हुए हमरो टॉपिक रे जो डिफिकल्ट वर्ड्स देथिबो किबा वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन मते किछटा आस्ते ही पारे हैला। तो एठी हमें कोन करबा से वोकैबुलरी टिकू जो वर्ड सेठी हमकु लागुथिबो ए वर्ड हेथिबो बळी की ताको हमें रिप्लेस करी के देखिबा एवं तार मीनिंग काढिया पे चेष्टा करबा। एवं ए केस रे इफ यू फाइंड आउट दैट इट इज द सेम इन द मीनिंग द आंसर इज करेक्ट। एठी एटा को रिप्लेस करी के देखिबा जो वर्ड्स हमको क्वेश्चन रे पड़ी थिबो हमर टेक्स्ट रे जाई के ताको रिप्लेस करिबा जदी लागिला हमको करेक्ट अछि बोली की ताले आंसर ता ठीक थिबो। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस तो क्वेश्चन तो प्राय तो आसे नहीं जदी आसिला तापरे हमें ताको तथरे मल्टीपल चॉइस को रीरीड करिया पैसेज को देन करेक्ट आंसर को टिक करिबा प्राय तो आसे नहीं। मोस्ट पैसेजेस रिक्वायर एटलीस्ट 2 रीडिंग्स दुई थर तीन थर पढ़िबा जते पर्यंत हमें बुझी न पारुछे कारण अंडरस्टैंडिंग जदि न हबो पैसेज को ताले हमें आंसर करि परिबा ना। बिफोर राइटिंग द आंसर चेक द क्वेश्चंस अगेन टू बी श्योर यू हैव रियली अंडरस्टूड देम। दैट मींस आंसर लिखिबा पूर्वरु हमें कोन करिबा क्वेश्चन को चेक करिबा एवं सेटा को ठीक हिसाब रे हमें बुझी पारिसी कि नहीं बा सही आंसर ता जो लिखिबा सेटा ठीक अछि कि नहीं ताको हमें श्योर हला परे ताको लिखिबा। यू मस्ट राइट कंप्लीट सेंटेंस एज एन आंसर। तो लास्ट को होची आंसर ता कंप्लीट सेंटेंस रे दवा दरकार गोटे वर्ड रे किंबा आधा सेंटेंस रे लिखिबा उचित न हो कंप्लीट सेंटेंस रे लिखिबा। So now
there is a unseen passage before you, and we have to read. At first मु कहितली तुमको passage टाको हमें प्रथमे पढ़िबा तापरे आंसर करिया पे चेष्टा करबा. Okay, so I am going to read the passage for you. और माने मध्ये टिके टिके पढुता passage टा कोन अछि, तापरे मु क्वेश्चन आंसर जतले डिस्कशन करा हबो तुमको क्वेश्चन पचरा हबो passage रु तबे क्वेश्चन टाको आंसर खोजिया पे चेष्टा करियो. Okay. There lived in a city of Ujjain a poor tailor named Rampal. As he was very poor, he had to live and work in one little room with his wife Lakshmi and their 3 small children. The children fought with each other and made so much noise that Rampal was not able to work. They took away his needles, cut themselves with scissors, and spoiled the pieces of cloth which Rampal's customers gave him to make into clothes. Sometimes his wife got angry with Rampal and shouted at him. He was very unhappy and did not know what to do. So this is the paragraph. Now जोटा मु कहितली हमर सेकंड स्टेप जोटा कहितली जोटा इंपोर्टेंट पॉइंट तुमको लागिवो सेठी तमे टिके टिके अंडरलाइन कर देई पारिबो. तो एठी देखो, इट इज अ स्टोरी, गोटे कहानी जोथरे किछिरा इंपोर्टेंट पॉइंट मु अंडरलाइन करिवि. ए सिटी ऑफ उज्जैन, देन देयर इज ए पुअर टेलर Rampal. Okay, so now आउ किछिटा सेकंड सेंटेंस को देखो. As he was very poor, he had to live in one little room with his wife Lakshmi. Their 3 small children. Okay, the children fought with each other and made so much noise. Then Rampal was not able to work. They took away his needles, cut themselves with scissors, and spoiled the pieces of cloth which Rampal's customers gave him to make into clothes. Okay. Sometimes his wife got angry. He was very unhappy and did not know what to do. पढ़ी पिला माने वर्तमान आम 5टी जो क्वेश्चन अच्छी से सॉल्व करने चेष्टा करवा. ओके, पैराग्राफ तो तुम देख लो. वर्तमान प्रथम क्वेश्चन होची, what made Rampal live and work in one little room? 5टी क्वेश्चन अच्छी. there are 5 questions. You first read the 5 questions and then go back to the passage. पुणी थरे पैसेज को जिबा एवं से पैसेज रो जो पोर्शन रे आंसर टा अच्छी बढ़िया तुमको लागुची सेठी तमे अंडरलाइन करिवो. ओके, सेकंड क्वेश्चन कहूची, who were the other members in his family? Why was not he able to work? Why did his customer give him pieces of clothes? How did his wife sometimes deal with him? हैला. प्रथम क्वेश्चन कोन कहूची, what made Rampal live and work in one little room? सो इठी किछिटा वर्ड देखो कोठी मैच खाउची हमर पैराग्राफ रे. एठी देखो गोटे लिखा हिची वन लिटिल रूम. एठी देखि पारुथो वन लिटिल रूम. ओके, तो एठी प्रश्न कोन कहउतला पिले कि आंसर देई परिबो, हाथ टेको आंसर के देई परिबो.
What made Rampal live and work in one little room? What made Rampal live and work in one little room? आंसर किए दे परिबो? क्वेश्चन टाको जदि मु ओडिया रे करिबी ताहले व्हाट मेड रामपाल लिव एंड वर्क इन वन लिटिल रूम, अर्थात रामपाल काहे की गोटिए छोटिया रूम रे रहुथला एवं काम करूथला कोथि पय? कारणटा कोन रहिछि एठी के आंसर दे परिबो? एनीबॉडी? राष्ट्रविद्यालय। राष्ट्रविद्यालय एठी देखो एठी मु अंडरलाइन करिथिली एठी तमे आंसर टा करिया पय चेष्टा करो। रामपाल गोटिए रूम रे रहुथला एवं काम करूथला। व्हाट मेड रामपाल टू लिव एंड वर्क इन वन लिटिल रूम? आंसर कौन हबो? यस, He was poor. यस, ही वाज वेरी पुअर। पूरा मु कहितली Taylor. आंसर टा सब बळे आंसर टा में सब बळे He चेष्टा करबा had ओने। he had to live and work one little room. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आउ की कहबो? He was very poor, so he had to live and work in one little room. आउ की कहबो आंसर? Lady Wong School? He was very poor. Yes, he was very poor. Okay, very good. He had ठीक अछि पिले? to live and work in one little room. One little room, very good. ठीक अछि। तो एठी हमें आंसर पाई गले रामपाल वाज वेरी पुअर, इट मेड हिम लिव एंड वर्क इन वन लिटिल रूम। तापर देखो हु वेर द अदर मेंबर्स इन हिज फैमिली? हु वेर द अदर मेंबर्स इन हिज फैमिली? His wife and other His wife and three children. Good. Three children. तो आंसर ता कोन हमें टिके सुनो, आंसर ठीक दउछो तमे, बट ताको हमें टिके सजे की आंसर ता दबा। हु वेर द अदर मेंबर्स इन हिज फैमिली? आंसर ता तमे कंप्लीट सेंटेंस रे देबा में चेष्टा करो। ट्राई टू आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। द अदर मेंबर्स इन हिज फैमिली, द अदर मेंबर्स इन हिज फैमिली वेर वो Lakshmi and the children. ओके एठी देखो हमें जेतबेले मु कहितली अंडरलाइन करिया पई एठी अंडरलाइन मु करितली नहीं, एठी अंडरलाइन करा आइतला। तो अदर मेंबर्स को माने आसीबे हिज वाइफ एंड थ्री स्मॉल चिल्ड्रन। नाटा भी लिखि पारो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, द अदर मेंबर्स इन हिज फैमिली वेर हिज वाइफ एंड थ्री स्मॉल चिल्ड्रन। Okay, next question. Why was not he able to work? Why was not he able to work? Question number 3. Why was not he able to work? की आंसर दी परिबो? एठी देखो गोटे वर्ड अछि, आमे जतेबेले पैसेज टाकू सॉल्व करिया पे चेष्टा करूछे, क्वेश्चन रो जो शब्द गुडी को थिबो चेष्टा करिवो पैसेज रे कोठी अछि खोजिया पे चेष्टा करिवो। Why was not he able to work? तो एठी देखो, yes, The children fought with each other and made so much noise that Rampal was not able to work.
बहुत बढ़िया आंसर देलो वेरी गुड सिट डाउन बढ़िया तो एठी आंसर पाई वाला पिला माने देखो इट इज वेरी इजी टू कारण हमरो पैसेज रे प्रायतः आंसर ओडी को हमें डायरेक्टली पाई जाई था केतेबेले केमती इनडायरेक्ट क्वेश्चन सब थाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन he was not able to work because the children fought with each other and made so much noise okay next why did his customer give him pieces of clothes why did his customer देखो इटी डायरेक्ट क्वेश्चन नुह काहे की दउथले तांकर कस्टमर माने कपड़ा काहे की ताकू दउथले बुझिया पे चेष्टा करिवा मेसेज रु कपड़ा काहे की दउथले एठी देखो खोजो कस्टमर वर्ड पाई गला पिला एठी तो सही ठरो हमें आंसर खोजिया पे चेष्टा करिवा मु कहितली क्वेश्चन रो किछिटा शब्दटा को हमें मेसेज रे खोजिबा जोठी अछि सेठी अंडरलाइन कर दबो एठी आंसर टा मिलिबो के कहि परिबा आंसर कस्टमर ताकू काहे की कपड़ा दउथले एनीबॉडी Rampal's customers gave him to make into clothes. yes Rampal's customers gave him clothes ang कपड़ा दउथले टू मेक इनटू क्लॉथेस अर्थात से कपड़ा को तैयारी करिया पे दउथले से माने ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन होची how did his wife sometimes deal with him ताको स्त्री ता सहित केमिति डील करूथले एठी हमरो मु कहितली एठी हम खोजिबा शब्द his wife एठी आंसर खोज आंसर मिली जिवो बहुत इजी अछि तार वाइफ ता सहित केमिति डील करूथले रामपाल रो वाइफ yes वो His wife got angry with Rampal and shouted at him. very good बहुत He बढ़िया was very unhappy. नहीं हमें सेटा लिखिबानी केवल गोटे सेंटेंस रे आंसर दबा okay so his wife sometimes got angry and shouted at him तो गोटे हमर पैसेज आंसर सरी गला पिले नेक्स्ट आ गोटे पैसेज देखिबा बहुत सुंदर पैसेज मु पैसेज टाको पढुची तमे मते मने मने पढुथा once there was a farmer who had two sons he was a rich man and he had a lot of land many cows and sheep and many servants his son helped on the farm they all lived together happily but after some years the younger son began to feel unhappy though he had everything to make him happy he no longer wanted to live in the house with his father and brother he went to his father and said father give me my share of land and the cows and the sheep I do not want to live here any longer his father said my son why do you want to leave us are you not happy here do not go this is the paragraph आउ थरे हमें paragraph टाकू पढ़िबा एवं जोटा तुमको इम्पोर्टेंट लागुची सेठी तमे अंडरलाइन करिवो हला तो वर्तमान डायरेक्टली क्वेश्चन को जाउची देखो what did the rich farmer possess possess रा मीनिंग तो समस्त जानिथिबो बिले बट possess अधिकार अर्थ रे व्यवहार हुए तार अर्थ होची फार्मर पाखरे कोन थिला कोन जिंस थिला व्हाट डिड द फार्मर पोजेस तो इठी हमें पैराग्राफ को जाई के टिके आंसर खोजिया पे चेष्टा करिबा आंसर के देई परिबो व्हाट डिड द फार्मर पोजेस के कहबो व्हाट डिड द फार्मर पोजेस you can see here answer के देई परिबो what did the farmer possess व्याकरण विद्यापीठ वो वेरी इजी क्वेश्चन अछि एठी
कृषक वा फार्मर पाखरे कौन कौन थिला एठी मैं अंडरलाइन भी कर देछि तमे आराम रे क्वेश्चन आंसर दे परिबो आउ थरे क्वेश्चन को देखो व्हाट डिड द रिच फार्मर पोजेस आंसर कौन हो पिले द रिच फार्मर हैड a lot of land many cows and sheep and many servants simple अर्थात डायरेक्टली हमें टेक्स्ट नहीं परिबो तो आंसर तक the rich farmer had a lot of land many cows and sheep and many servants how did his sons live how did his sons live तार पुआ माने केमती रहउतले केमती रहउतले के कहबो केमती रहउतले how did their sons live They are lived together. lived हबोनी lived Lived. yes They are happily lived together अच्छी happily. ठीक अच्छे बढ़िया हैप्पीली बढ़िया खुशी रे रहउतले समस्ते ओके वेरी गुड को के कहूछ को ओके आंसर पाई गला हिज सन्स हेल्प्ड हिम ऑन द फार्म एंड दे ऑल लिव्ड टुगेदर हैप्पीली समस्ते खुशी रे रहउतले व्हाट हैपेंड टू द यंगर सन आफ्टर सम इयर्स यंगर सन हमें यंगर सन ऊपर एठी अंडरलाइन करबा यंगर सन एठी रहला ओके तो क्वेश्चन रो हमें गोटे वर्ड पाई गला यंगर सन तो एठी कोन क्वेश्चन व्हाट हैपेंड टू द यंगर सन आफ्टर सम इयर्स कोन आइची के कोई परिबा आंसर एनीबॉडी वो After some years, after Yes. after some Yes. years, the younger son began to feel unhappy. unhappy very good After some years, the your son began to feel unhappy okay एगला आंसर नेक्स्ट कहूछ देखो व्हाट एवं आ गोटे देखो एटी एंड नो लॉन्गर वांटेड टू लिव इन द हाउस विथ हिज फादर एंड ब्रदर ये कौन है अनहैप्पी फील करिछि एवं नो लॉन्गर वांटेड टू लिव इन द हाउस से रहिबा पई मध्ये चाहु नथिला और बापा संगे एवं भाई मानक संगे से रहबा लागि चाहु नेक्स्ट व्हाट डिड ही टेल हिज फादर और बापा को से कौन कहिछि व्हाट डिड ही टेल हिज फादर एटी को he went to his father and said एटी आंसर अछि पिले देखि परथुबो he said told his father. yes He told his father. yes he told his He father told his father. hmm? Father, give me my share of the land and the cows and the sheep. Hmm. I do ठीक अछि not want to live here any longer. ओके ठीक अच्छे ठीक कहूछ बट टिके स्पीच टा टिके अलग अलग हवा कथा जो डायरेक्ट स्पीच रे लिखा है तमे जतो इनडायरेक्ट स्पीच करूछ ताको टिके चेंज करिया कथा हम हला हम ताको चेंज करी के लिखिबा एनीवे he told his father to give him the share of the land cows and the sheep and also told that he did not want to live there any longer what did his father ask him ता बापा ताको कोन कहिले what did his father ask him कोन कहिले एठी देखो his father said एठी आसी जे आंसर ता को पिला आंसर को His father asked him, "My son, why do you want to leave us? Are you not happy here? Do not go." and do not go ताको हमें डायरेक्ट स्पीच रे जो लिखा है ताको टिका में चेंज करी कि इनडायरेक्ट स्पीच रे लिखी हैला ओके तो आंसर कोन हबो his father asked him the reason of leaving them he also asked whether he was not happy there and told not to go so this is the answer so now dear students मैं तुमको होमवर्क गुटे देबी एठी किछटा
गोटे पैराग्राफ दिया है तुम सार को कहब ये पैराग्राफटा टिके फोटो करके नहीं जिवे एवं सेटा तुम पई 5टा क्वेश्चन मत दिया जिवो सेटा को तुम निजे करिवो बुझेगला ठीक अच्छे तुम जब लिखा चाहो लिखि पार पैराग्राफटा को जब चेष्टा कर लिखा 2-3 मिनट तुमको दिया हम समय so dear students I think you all have understood the different tips or techniques how to solve an unseen passage. Thank you very much.